Hello. Yeah, can you hear me? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you. Lecture is at 7 p.m. only. It's just that I wanted all of you to get connected before lecture starts. Okay, sir. Is there any disturbance from my side in terms of audio? Sir, sometimes it gets low in between. Okay. Right now, can you hear me properly? Yeah, yeah, sir. This is now audible. Yes, sir, it's audible. Okay. Thank you.
Hello, students. Good evening. Good evening, sir. Am I Good audible? evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Yeah. Am I audible to everyone? Or is there any noise disturbance? Yes, sir. Okay. Can everyone see my screen over here? It's an LLP updated sheet, PowerPoint presentation. Yes, sir. Yes. Okay. So, students, this is your first lecture as a for law class for your law subject. So, I will. My name is Sanjay Raj Vyas. I will be teaching you law subject. I'm a qualified company secretary professional and LLB, that is general lawyer. Whenever you feel that I'm going too fast, you can just let me know, and you can always ask your doubts while I'm teaching you the subjects. It's not necessary that we will ask the doubts after the PowerPoint presentation is over or after the lecture is over. You can ask me in between as well, as per your convenience. I'm okay with that. So am I clear with everyone on the instructions? Yes, sir. Okay. So before starting this limited liability partnership, what limited liability partnership is all about, I would like to first tell you guys what is law. So, what is law? Law is a concept like people say it's rules and regulations. Some people say कानून है. Some people say it has to be followed. It has to be strictly followed. But what is law? And why is law needed? So, the basic reason why a law is needed is because if there is no law, then there will be chaos. For example, if there is no law of traffic, that is at a signal, then there will be chaos. Everyone will drive the car as per their wishes. No one will wait for the directions. Everyone will move the car, move their auto vehicles at their space. So that is why law is needed. Law is not only needed just to follow it, it is also needed to have a discipline. So law can also be said as a discipline. Secondly, why is law needed for a students of chartered accountant profession? It is very, very important that the students who are pursuing chartered accountant profession should know law. The basic reason is tomorrow when you go in the field of accounts or finance or taxation, you will be always asked first thing whether this is permissible under the law, and what you will answer, yes. How? Because you have studied the law. So that is the reason why your institute, that is Institute of Chartered Accountants of India, wants all the students to have the knowledge of law subject and as a practical manner as well. Okay, till here anyone having any problem in audio or anything? Can I continue? Yeah. Yeah. Yes, sir. Yeah, thank you, students. So first is, see, there are 5 chapters in your syllabus for law subject. I'm starting with Limited Liability Partnership Act as my first chapter. So the reason why I'm taking this first chapter is, first of all, it is very small, without a doubt. Second thing, this chapter will tell you how the law has started, how the law language is framed. So this all things you will come to know under this provision. Third thing, LLP Act.
So we start now with the basic concept of preface, that these are the business forms of organizations. Can you see everyone? The business forms of organization. So in this business forms, if you can see what I have made under the chart is first the proprietorship, second is a company, third is a partnership firm, and fourth is limited liability partnership. So what is this all about? So see, आपको अगर कल उठ के कोई भी बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको बिजनेस करना है तो प्रोप्राइटरशिप क्या होती है वो समझना होगा, कंपनी क्या होती है वो समझना होगा, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है वो समझना होगा, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है वो आपको समझना होगा। प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई रूल्स या कोई रेगुलेशंस नहीं है। कंपनी के लिए है, उसे बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप फर्म के लिए भी है, उसे बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए भी है, उसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जो हम ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अभी आज की तारीख में समझो, अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, अगर समझो आपको कोई सैंडविच का शॉप खोलना है, कोई पिज्जा शॉप खोलना है, या आपको कोई फूड शॉप खोलना है, या आपको कोई क्लोथ्स के शॉप खोलना है, या मोबाइल शॉप खोलना है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको वो बिजनेस कौन से फॉर्म में करना है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं? स्ट्रक्चर हो सकता है या तो प्रोप्राइटरशिप जैसा तारक मेहता का जेठालाल, कंपनी जैसे रिलायंस, पार्टनरशिप फर्म जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म होती है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ओके, ओके। सो नाउ अभी हम ये समझते हैं कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक एडवांटेज होता है और एक डिसएडवांटेज होता है, और उसी के कारण ये बिजनेस फॉर्म फ्लक्चुएट होते जा रहे हैं, फॉर्म होते जा रहे हैं नए नए। पहले प्रोप्राइटरशिप से बने, फिर कंपनी में आए, फिर पार्टनरशिप फॉर्म आया, फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आया। हेलो हेलो, किसी का माइक चालू है एक्चुअली, कैन यू प्लीज म्यूट? हेलो, या सो अभी हम दूसरे स्लाइड पे जाते हैं। हेलो, the dynamic business environment we live in today calls for constant change and upgradation in order to remain. Hello. In order to remain relevant, there is a need for a business structure that appeals to business and service sector alike with lesser restrictions and government intervention. जब हम बोलते हैं लेसर रेस्ट्रिक्शंस का मीनिंग क्या हो सकता है? लेसर रेस्ट्रिक्शंस मींस कि मैं आज चाहता हूँ कि आज बिजनेस को स्टार्ट करूँ और मुझे आज से बिजनेस स्टार्ट करने का परमिशन मिल जाए। तो ये हर एक बिजनेसमैन और हर एक एंटरप्रेन्योर का विश रहता है कि मैं ऐसा कोई बिजनेस करूँ कि मैं आज से आज ही मुझे परमिशन मिले, आज से आज ही मुझे उसका लाइसेंस मिले और मैं वो कर सकूँ। हेलो, या फिर दूसरा, द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर मतलब क्या? जो कंपनी एक होती है इज वन ऑफ द फेवरेट, वो सबसे अच्छी मानी जाती है, बट नॉट विदाउट इट्स लिमिटेशन। हर एक लॉ के दो साइड होते हैं, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। तो कंपनी का भी सेम है। वैसे कंपनी फॉर्म करना सबसे अच्छा माना जाता है, वो आपको हम कंपनीज एक्ट में बताएंगे, लेकिन उसके भी कोई लिमिटेशंस है। इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हीकल, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2008। In India, LLPs are governed by the provisions of the Limited Liability Partnership Act 2008, effective by way of notification dated March 2009. Secondly, LLP Act का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? LLP Act is applicable to whole of India, including the state of Jammu and Kashmir. अभी जम्मू एंड कश्मीर हमारे इंडिया के ज्योग्राफी में माना जाता है, पहले नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी जब ये LLP Act 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ तब से वो एक्ट एंटायर इंडिया में एप्लीकेबल है। इसके फायदे क्या होते हैं? इसका ये बेनिफिट है कि कोई भी अगर पर्सन जम्मू एंड कश्मीर में भी रहता है तो ही कैन आल्सो सेट अप एंड एस्टैब्लिश अ बिजनेस स्ट्रक्चर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, रैशनली, व्हाट डू यू मीन बाय रैशनली? रैशनली मींस इंपॉर्टेंस या बैकग्राउंड। ये एक्ट को लाने की वजह क्या थी? क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि
हमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लाना है, उसका सबसे मेन रीजन ये था कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म मतलब जेठालाल टाइप बिजनेस, उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म, उसके बाद कंपनी, ये तीनों बिजनेस चल तो रहे थे, ये तीनों बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में थे, लोगों को इसके थ्रू बिजनेस हो रहा था। लेकिन जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि कुछ ना कुछ हर एक बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, और वही रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस को तोड़ने के लिए, वो जिंक्स को तोड़ने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप व्हीकल को एस्टेब्लिश किया गया। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता क्या है, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर ओवरव्यू। सो चैप्टर ओवरव्यू में बेसिकली देखिए, आपको एलएलपी चैप्टर में इंट्रोडक्शन, इनकॉर्पोरेशन, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस, मीनिंग एंड कंसेप्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। तो पूरे चैप्टर में आपके एलएलपी एक्ट के जो आज हम पढ़ेंगे, उसमें ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन कवर हो जाएंगे, जो मेरे पीपीटी स्लाइड में भी है। ओके, एनीवन हैविंग अ डाउट टिल हियर? हेलो? No, sir. ओके, ओके, थैंक यू। अब ओवरव्यू ऑफ एलएलपी क्या है? ओवरव्यू ऑफ एलएलपी ये है कि उसमें एक परपेचुअल सक्सेशन है, उसकी कंटिन्यूटी होगी, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सैलरी में या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स में। एलएलपी जो बनती है ओनली विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट बनती है। कंपनी लॉ में आप जब जाओगे तो कंपनी लॉ में एक कंसेप्ट है, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है अगर आपके पास एक लिमिट है वहां पे, अगर आपके पास वो लिमिट क्रॉस होती है प्रॉफिट में, तो आपको 2% उसका कंट्रीब्यूशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक चैरिटी फंड में देना पड़ेगा, और वो चैरिटी के लिए यूज होगा। जबकि एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं माना जाता है। दो नो अपर लिमिटेड फॉर द नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब जो भी जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स है उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। आप लोग को पता होगा कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जितना आप बिजनेस में लेके आते हैं पार्टनर्स, उसे कहते हैं। नो मैंडेटरी मीटिंग एंड देयर कंप्लायंसेस। मैंडेटरी मीटिंग्स मतलब क्या? कंपनी लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि कंपनी लॉ में आपको बोर्ड मीटिंग्स रखनी पड़ती है, लेकिन एलएलपी एक्ट में कोई पार्टनर्स मीटिंग कंपलसरी नहीं है। इट इज एट द डिस्क्रिशन। व्हेन आई से डिस्क्रिशन मींस क्या? इट इज एट द ऑप्शनल ऑफ द पार्टनर्स वेदर दे वांट टू हैव अ मीटिंग और नॉट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम जाते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। अभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में सबसे पहला है बॉडी कॉर्पोरेट। What do you mean by the term body corporate? The term body corporate का meaning ये है, the term body corporate is defined as an organization which is established under the law. When I am saying it is established under the law, इसका meaning क्या हुआ? इसका ये meaning हुआ, once it has come under the permission and under the existence of the law, then no one can dissolve it. Dissolve it means उसको बंद कर सकता है except with the procedure of law. फिर उसके बाद बिजनेस, एलएलपी जो है वो कौन से टाइप का बिजनेस कर सकती है? एलएलपी वो हर बिजनेस कर सकती है जो एक कंपनी, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म कर सकती है। उसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रेड हो, सर्विसेज हो, वो सब कुछ कर सकती है। डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये एक कंसेप्ट है जो काफी अलग है और काफी नया है, इसे मैं समझाना चाहता हूँ। अभी देखिए, कंपनी में क्या होता है, कंपनी में शेयर होल्डर्स अपने पैसे देते हैं और डायरेक्टर्स उस कंपनी को रन करते हैं, उस कंपनी को मैनेज करते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर्म में एक होते हैं पार्टनर्स और एक होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का काम ये है कि उन्हें जो भी कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजन है, कंपनी के फाइनेंशियल्स डिसीजन है, जो भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट्स डिसीजन है, जो भी कंपनी के बिजनेस डिसीजन है, जो भी कंपनी के स्ट्रेटेजी डिसीजन है, वो सब डेजिग्नेटेड पार्टनर को लेने होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चालू करने के लिए आपको मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। अभी काफी बार स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 जो पार्टनर है वही 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, ऐसा कंपलसरी है? तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर कैन बी 2 डिफरेंट पीपल। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम संजय है और मेरे फ्रेंड का नाम केयूर है। हम दोनों पार्टनर बनना चाहते हैं उस बिजनेस में। हम क्या बनना चाहते हैं? पार्टनर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है।
लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं है वो बिजनेस रन करने को। फॉर एग्जांपल मेडिकल शॉप का ले लेते हैं। मुझे और मेरे फ्रेंड केयू को ऐसा लगता है कि हम लोग दोनों को एक बिजनेस करना चाहिए मेडिकल शॉप का, और हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक वेल्डन केमिस्ट शॉप ओपन करेंगे। अब वेल्डन केमिस्ट शॉप तो हमने ओपन कर लिया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन हमारे पास नॉलेज एंड स्किल्स नहीं है कि वो मेडिसिन का बिजनेस कैसे करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 2 और लोगों को वहां पे एज अ पार्टनर ज्वाइन करवाएंगे, लेकिन उनसे कंट्रीब्यूशन हमें ज्यादा नहीं चाहिएगा फॉर आवर बिजनेस। हमें क्या चाहिए, उनके नॉलेज एंड उनके स्किल्स, एंड दे विल बी द एग्जीक्यूटर्स, दे विल बी रोलिंग द शो ऑफ द बिजनेस। It will not be me and KU. It will be the 2 other people who will be rolling the show of the business. Entity. What do you mean by the term entity? Sir, Entity. Sorry. sir, Yes. sir, I have a doubt. Yes. Sir, but profit will be distributed between all those partners or only the partners or designated partners? So what happens in limited liability partnership? You have to enter into an LLP agreement. Okay. As per the LLP agreement, you have to decide whether the profit is to be given to the designated partner or not. Sometimes people say, I don't want to I don't want to give him my contribution profit. I will pay him a fixed amount of salary. Sometimes someone says, I will pay him salary plus 10% of the entire profit, whatever we get as a higher on a higher side. So it depends on every case to case basis. It is not compulsory that the designated partner should get the benefits of the profits. It is depending on their LLP agreement, how the LLP agreement has been drafted. It is purely on the LLP agreement terms and conditions. Okay. Sir, And Yeah. sir, is there a limit on number of designated partners? So there is no limit on the number of the for the designated partners, or there is no limit for the number of partners. But on an average, see, the basic purpose for starting all this limited liability partnership is that you try to keep few people with you so that the decision can be faster. The higher the number of people, the higher it will take. The more the brains, the more the decisions, and the delay in the decisions will happen. So there are many LLPs wherein the maximum designated partners goes on almost like max to max on an average 8 to 10, or on a upper side to 20, not more than that. sir, I have a doubt in previous Yeah. slide. Yeah. Actually, third point or maybe something. They have this Yeah. no upper limited for number of partners. It means So what happens in Indian Partnership Act? So there is a limit कि आपको 10 पार्टनर्स एंड 20 पार्टनर्स के 2 डिफरेंस होते हैं। कौन से टाइप का आपका बिजनेस है, वो टाइप ऑफ बिजनेस में 10 पार्टनर्स ही अलाउड है, और सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस में सिर्फ 20 पार्टनर्स अलाउड है, उससे ऊपर अलाउड नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ LLP देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। आपको जितने पार्टनर्स रखने हैं, जितने लोग आपके साथ आना चाहते हैं, आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, वो सबको आ सकते हैं आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूशन देने के लिए, एंड देयर विल बी नो लिमिट ऑन दैट। ओके। okay, sir. Sir, so partner and designated partner can be one and the same, or it may be different. Yes, it can be one and the same and also can be different. For example, मैं और के हूँ, ठीक है, हम लोग दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और CS भी है। हम लोग दोनों के पास स्किल्स है कि हम लोग CA का बिजनेस भी कर सकते हैं एंड CS का बिजनेस भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग एक कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं। तो वी आर पार्टनर एंड वी आर अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। पर समझो मुझे और केयर को एक और बिजनेस करना है which is in the field of science or which is in the field of engineering like machines, equipments, लेकिन हमारे पास skills नहीं है। We have money, we are cash rich, we can invest as much as money they want, but we don't have skills and expertise on this business. So what we do, we hire 2 other people who have the skills and expertise for those things, but they will be the designated partners and we will take the position of partners, because we are not in the execution decisions of the business, that how the strategy has to form, how to like do the marketing of my business. That all idea we both don't have. So it can be the same or it can be different as well. Okay, sir. So now we come to the definition financial year. So what is financial year? So financial year has been defined under Indian Companies Act also and under LLP Act also 2008. That is 1st April till 31st March. Okay. So every LLP, that is limited liability partnership,
whoever starts the business of limited liability partnership has to mandatory prepare an books of accounts, and the books of accounts and the financial statements has to be for the year 1st April till 31st March. Okay. Then there is a concept called foreign LLP. Now, what is foreign LLP? Over here, we are studying till now is the concept of Indian LLP, that these are Indian LLPs, these are Indian LLPs. Now, what is the concept of foreign LLP? So, what government of India has said, अगर कोई भी LLP एक ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो सिर्फ इंडिया को पता है. LLP का कंसेप्ट यूके में भी है, अब्रॉड में भी कोई भी आप just a minute. So you skipped entity. No, I explained. Okay, entity. Thank you. Entity is a entity. इसका मीनिंग क्या होता है? Entity is a business form of organization. Once you have registered under the limited liability partnership, you get a characteristics, that is you get a tagging that you are a entity. And what is your entity? Your entity is a legal entity. Now, what is the difference between entity and a legal entity? Entity means like a proprietorship firm. It is just an entity. They do not have any law. No one can, give them the rules and laws and applicability. But in case of LLP, this is not the case. In case of LLP, entity, it is a separate legal entity. That is, it is registered under the Limited Liability Partnership Act, and it is considered as a legal identification. Okay, everyone. Now, I was on the financial foreign LLP. So foreign LLP क्या concept है? Foreign LLP का ये concept है. For example, कोई UK में एक LLP है. Example हम लोग लेते हैं Pepsi LLP. तो Pepsi LLP अगर इंडिया में अपने business operation start करती है, तो Indian LLP Act के हिसाब से वो foreign LLP मानी जाएगी. For example, हम लोग दूसरे भी कोई और भी companies के नाम ले सकते हैं, like Coca-Cola है समझे, या फिर कोई Franklin Templeton कंपनी है समझे. वो एस्टैब्लिश्ड इंडिया में नहीं हुई है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं किया अभी तक, लेकिन उनका एलएलपी का रजिस्ट्रेशन फॉरेन में हुआ है उनके एक्ट के अंदर, उनके कंट्री के अंदर, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड डूइंग बिजनेस इन इंडिया. सो व्हेन दे स्टार्ट डूइंग बिजनेस इन इंडिया, दे विल बी कंसीडर्ड एज फॉरेन एलएलपी. नाउ वी कम फॉर द मेन डेफिनेशन, दैट इज व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. सो आई विल ब्रेक दिस थ्री. Sir. Yeah. Sir, you said that foreign LLP, it is registered according to the Foreign Companies Act. Jurisdiction, उधर जो रहेगा, foreign jurisdiction. हाँ, foreign jurisdiction. तो सर इधर मतलब जो भी लॉ रह गए मतलब इंडियन के, तो वो एप्लीकेबल नहीं होंगे? नहीं, एप्लीकेबल होते हैं. सो कैसा होता है, देखो कोई भी कंट्री, अगर 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है कोई भी, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड यूके, ठीक है, यूके वाले इंडिया से बिजनेस कर रहे हैं और इंडिया वाले यूके से बिजनेस कर रहे हैं, सो एक ट्रीटी बनाया जाता है, उसे बोलते हैं ट्रीटी. एंड यू हैव टू फॉलो द ट्रीटी गाइडलाइंस. कि ट्रीटी में आपको क्या क्या है, apart from the law what is applicable to the company, you also have apart from the law that is applicable to your business organization, you also have to follow the treaty. कि treaty के क्या guidelines है. So ऐसा नहीं है कि foreign LLP इंडिया में आएगी तो उसको इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, उनको फॉलो करने पड़ेंगे. क्यों? लेकिन उनको क्या बोला जाएगा, फॉरेन LLP. क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनका रजिस्ट्रेशन फॉरेन जुरिस्डिक्शन है. Okay, sir. Thank you. Yeah. Now I move to the definition of limited liability partnership. Now, what is the meaning of limited liability partnership? First word is limited, second word is liability, and third is partnership. So first I explain you the word what is partnership. Partnership मतलब क्या? When 2 people come together. Partnership like cricket में आप देखते हो तो partnership होती है, सचिन और गांगुली की होती थी. वैसे पार्टनरशिप आज की तारीख में विराट कोहली की होती है अपने प्लेयर्स के साथ. तो पार्टनरशिप में क्या होता है, individual can never be a partner, there has to be 2 or more people to become a partnership. First thing. Second word is liability. अभी liability का meaning क्या होता है? Liability मतलब आप कितना liable हो, आप कितने, आपके decisions आपकी liability decide करती है. And third word is limited. Limited means क्या? To the extent. एक लिमिट है, उसके ऊपर नहीं जा सकती आपकी लायबिलिटी. इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. सो समझो मैं और केयूर है, हम लोग दोनों को बिजनेस करना है, ठीक है. हम लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम दोनों को एक बिजनेस करना है, और वो बिजनेस करने के लिए हम आपसे कंसल्टिंग ले रहे हैं कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर हमको अडॉप्ट करना चाहिए. हम प्रोप्राइटरशिप नहीं कर सकते, हम दोनों पार्टनर बनना चाहते हैं. हमको या तो कंपनी बोलो
कंपनी हम चालू कर सकते हैं, या तो आप हमें बोलो पार्टनरशिप फॉर्म हम करेंगे, या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि मुझे और केयूर को आज के दिन में जितना हमने कंट्रीब्यूशन किया है बिजनेस में, उतनी हमारी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा हमारी लायबिलिटी नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि समझो आज हमारा बिजनेस चालू हुआ और हम लोग को फर्स्ट ईयर 10 lakhs का प्रॉफिट हुआ, तो 10 lakhs तो हम दोनों के बीच में बढ़ गया, पर समझो नेक्स्ट ईयर 20 lakhs का लॉस हुआ, एंड अभी हमारे सामने सारे क्रेडिटर्स खड़े हैं और क्रेडिटर्स हमसे बोल रहे हैं कि हमारा पैसा लौटाओ, हमारा पैसा लौटाओ। तो हम पैसा कहाँ से लौटाएंगे? हम पैसा उसी में से लौटाएंगे जो हमारा बिजनेस है। जितना मेरे बिजनेस के पास पैसा है, मैं उतना ही उसको पैसा लौटाऊंगा। मैं खुद की पर्सनल असेट्स को बेच नहीं सकता उनको पैसा देने के लिए। क्यों? इसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या? आपने जब ये एलएलपी एग्रीमेंट बनाया था, आपने मतलब समझो मैंने और केव ने जब ये एलएलपी एग्रीमेंट बनाया था, तो उसमें हमने लिखा था कि संजय विल कंट्रीब्यूट 1 crore, केयूर विल कंट्रीब्यूट 2 crores। अगर संजय ने 1 crore पूरा कंट्रीब्यूट कर लिया है और केयूर ने अपना पूरा 2 crore कंट्रीब्यूट कर लिया, मतलब टोटल अगर 3 crores कंट्रीब्यूट हो चुके, उसके बाद कोई भी अगर आउटसाइडर की लायबिलिटी होती है, तो वो लायबिलिटी हम लोग हमारे पर्सनल असेट्स बेच के हमें रीपे करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग एडवांटेज फॉर अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जहाँ पे सिर्फ नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म आप करते हो बिजनेस, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा बोला जाता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। व्हेन आई से अनलिमिटेड मींस क्या? कि कल उठ के समझो 20 लाख रुपए अगर पार्टनर्स के पास नहीं है देने के लिए अपने बिजनेस में से, तो वो सब पार्टनर्स को अपने अपने असेट्स, पर्सनल असेट्स बेच के वो 20 lakhs रीपे करना पड़ेगा अपने क्रेडिटर्स को। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ना ही पार्टनर्स को, ना ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को। उन्होंने जितना बोला था हम कंट्रीब्यूट करेंगे, उतनी उनकी लायबिलिटी। कंट्रीब्यूशन पूरा कर दिया तो लायबिलिटी बचेगी ही नहीं, और अगर कंट्रीब्यूशन बाकी है करना, तो उनको उतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एनीवन हैविंग अ डाउट? हेलो हेलो, someone was speaking something, I can't hear you. Hello, हेलो। आप मुझे चैट पे भी लिख सकते हैं अगर आपका कुछ डाउट है तो, इफ योर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज लो। हाँ बोलिए। पार्टनरशिप के लिए क्यों जाएंगे? मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए जाएंगे ना फिर? हाँ, अभी ये आपका क्वेश्चन का जवाब मैं आपको ये बोलता हूँ कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपको जाना है तो आप रिस्क लेने वालों में से नहीं हो, और मैं वो हूँ जो रिस्क लेना चाहता हूँ, तो मैं पार्टनरशिप में जाऊंगा। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के अंडर मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ज्यादा कंपलसरी नहीं है, मुझे किसी को कुछ जवाब नहीं देना, एंड प्लस मैं कोई लीगल एंटिटी नहीं हूँ, और अगर मैं एक बार लीगल एंटिटी नहीं हूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे कोई ज्यादा पकड़ नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पार्टनर हो तो आप पार्टनर्स के एंगल से देख के आपकी लायबिलिटी बचाना चाहते हो, इसलिए आप बोल रहे हो कि मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जाऊं। लेकिन अगर समझो आप एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हो, तो वहां पे तो आपको किसी को कुछ जवाब नहीं देना, वहां पे कंसेप्ट ही नहीं है डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर। आप ही डिसीजन मेकर हो, आपको किसी को कुछ पूछना नहीं है, जो आपका डिसीजन वो फाइनल डिसीजन। प्लस आपको दूसरा बेनिफिट क्या है, वहां पे आप जब भी आप बोलो आपका पार्टनरशिप फॉर्म आपको डिसॉल्व करना है, आप डिसॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स लेना पड़ता है। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वही लेते हैं जो थोड़ा कंजर्वेटिव रखना चाहते हैं, अपने रिस्क को ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहते। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में वो सब लोग जाते हैं जो एग्रेसिव है अपने बिजनेस को लेके, एंड जो काफी पॉजिटिव रहते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है, एंड देयर इज नो नीड टू गो एंड डू द रजिस्ट्रेशन अंडर द एलएलपी। क्योंकि एलएलपी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको फीस भरनी पड़ेगी, आपको ये एलएलपी का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आएगा जो मैं आपको पीछे समझाऊंगा, और ये सब के लिए थोड़ा टाइम लगता है। पार्टनरशिप फर्म को बनाने में इतना आपको टाइम नहीं लगेगा। अर्शित शाह का क्वेश्चन है, सर इज इट नेसेसरी टू डिसॉल्व द बिजनेस if the company is liable to pay the creditors and is unable to pay?
Sir, in LLP, sir, is it necessary to dissolve the business if the LLP is liable? See, मैं आपको वही समझा रहा हूँ अर्षित कि LLP में आपके बिजनेस में जितना पैसा है आपको उतना ही बिजनेस का पैसा देना है, और उसके बाद भी अगर आप पे ऑफ नहीं कर सकते हो और किसी को लगता है क्रेडिटर को कि आपकी LLP का बिजनेस को हमेशा के लिए बंद करना है, तो दे कैन गो टू द ट्रिब्यूनल एंड मेक एन एप्लीकेशन कि ये LLP जो चल रही है इसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है और आगे भी इनके पास कोई पैसा नहीं आएगा, इससे अच्छा है आप इनका बिजनेस बंद करा दीजिए क्योंकि ये हमारे लिए लॉस मेकिंग है। लेकिन ये होने के लिए जरूरी नहीं है कि ट्रिब्यूनल आपकी बात माने, वो डिपेंड करता है कि आपके पास ऐसा क्या प्रूफ, सिर्फ आपका पेमेंट रह गया या 10 क्रेडिटर्स का आज के दिन में पेमेंट रह गया, इसका ये मतलब नहीं कि बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता या बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, कोई भी बिजनेस इतना अप ही नहीं जा सकता, थोड़े फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि अभी के अभी बंद कर दो क्योंकि पैसा नहीं है इनके पास, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कंपनी में भी ऐसा ही होता है, कंपनी डायरेक्टली बंद नहीं हो सकती, एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के थ्रू ही वो बंद हो सकती है। अगर वो प्रोसेस में देखा जाता है कि कंपनी के पास नहीं है पैसा देने को लोगों को, तब जाके डिसाइड होता है कि अब ये कंपनी को बंद करना है। सेम इज विद LLP। Okay, sir. Thank you. या कैन आई मूव टू सर द आपने या सर आपने अपने एग्जाम्पल में बोला था कि जो फर्स्ट ईयर था या लास्ट ईयर था उसमें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था और आपने और केयूर आपके ने पार्टनर ने पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करके किया था। हाँ, राइट राइट राइट। तो हाँ तो डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो वो अभी नेक्स्ट ईयर लॉस हो रहा है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा क्या क्रेडिटर्स को? तो वही मैं कह रहा था कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर वो 20 लाख मैं जो दूंगा वो मेरे LLP के बिजनेस में से ही दूंगा। मतलब समझो अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है एक रेस्टोरेंट का, ओके, और मेरा फर्स्ट ईयर में 10 lakhs का प्रॉफिट हुआ था वो रेस्टोरेंट चला के। अब सेकेंड ईयर हुआ और उसमें 20 lakhs का लॉस हो गया। समझो अभी कोविड चल रहा है और मेरे ये पूरे साल में पूरा बिजनेस डाउन हो गया, रेस्टोरेंट का बिजनेस, ठीक है। अभी सामने एक क्रेडिटर खड़ा है जिसने बोला है कि मैंने आप लोग को इतना रॉ मटेरियल सप्लाई किया था, आपने अभी तक मुझे पैसा दिया नहीं। सो पहले मैं मेरे LLP बिजनेस का कैश देखूंगा कितना बाकी है, पहले मैं वो पैसा उसे पे ऑफ करूंगा। समझो मेरा वो पैसा है 4 लाख बाकी है, तो मैंने उसको 4 लाख दे दिया। अब उसको कितना और देना है मुझे? 16 lakhs। अब वो 16 lakhs पे करने के लिए मुझे मेरे LLP में जो भी मेरे पास असेट्स है, लाइक समझो कोई बिजनेस प्रॉपर्टी, मेरी वो रेस्टोरेंट की प्रॉपर्टी है तो मैं वो सेल कर सकता हूँ, मेरे कोई बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स है तो मैं वो सेल कर सकता हूँ, वो सब मैं सेल कर दूंगा। उसके बाद भी समझो मुझे और 1 लाख रुपए अभी तक देना बाकी है, तो वो मेरा गला आके नहीं पकड़ सकता कि तूने मेरा पैसा खाया। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं खाया, किसने पैसा खाया? LLP ने खाया। इसका डिफरेंस क्यों है? क्योंकि LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका जन्म, उसका जो बर्थ है वो एक लॉ में हुआ है। मैंने उसको बर्थ दिया है, लेकिन वो बर्थ हुआ है एक लॉ के थ्रू, मेरे थ्रू नहीं हुआ। ओके, ओके सर। इधर भी आपको ऐसा कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना, और अगर नहीं मतलब इफ योर नेट कनेक्टिविटी इज लो तो मुझे चैट पे रख देना, तो आई विल सी इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेफिनेशन इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट? अब तक हम पढ़ रहे थे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, अब एग्रीमेंट क्या होती है। देखिए, कोई भी बिजनेस करना है तो कागज तो होने हैं, बिजनेस पे कागज के बिना चलेगा नहीं। कहाँ पे कहीं ना कहीं तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बेसिकली क्या बोलता है कि जो भी पार्टनर्स बिजनेस करना चाहते हैं उनको एक एग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट में उन्हें सर्टन क्लॉसेस कंपलसरी है एक्ट के हिसाब से जो उन्हें लिखनी है, जैसे नेम ऑफ LLP, एड्रेस ऑफ LLP, कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ LLP, नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, एज ऑफ द पार्टनर्स, कौन सा पार्टनर कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, कौन सा पार्टनर कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, इन व्हाट टर्म। फॉर एग्जांपल, समझो 3 पार्टनर बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनर A, B, C। पार्टनर A एंड पार्टनर B बोलते हैं हमारे पास कैश है, हम लोग कैश कंट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर C बोलता है मेरे पास कैश नहीं है, आई एम नॉट सो कैश रिच, पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, आपको चाहिए तो मैं वो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकता हूँ LLP के अंदर, तो वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
So the basic concept of LLP says that there has to be a contribution, and the contribution can be even 1 rupee. It need not be 1 lakh, 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs. नहीं, अगर आप 1 रुपया भी देना चाहते हो और आपके दूसरे पार्टनर्स ओके कर रहे हैं वो चीज को, तो आप 1 रुपया दे के भी पार्टनर बन सकते हो इन LLP. ओके, ये हो गया टर्म्स एंड कंडीशंस में. और क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर की ऑथोरिटी क्या होगी? ऑथोरिटीज इन द सेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल पार्टनर ए, बी एंड सी, उनमें से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर बन गए, समझो पार्टनर ए एंड बी. तो पार्टनर ए एंड बी डिसाइड करें, उनको भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारी क्या ऑथोरिटी है. ऑथोरिटी इन द सेंस पावर्स. पावर्स मीन्स क्या? दे कितने अमाउंट का वो लोग चेक इश्यू कर सकते हैं, कितने अमाउंट का चेक वो लोग इश्यू नहीं कर सकते, वो लोग कौन सा बिजनेस कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ सी. मिस्टर सी इज ऑल्सो अ पार्टनर, उनको पूछना तो पड़ेगा ना हम ये बिजनेस करना चाहते हैं. आफ्टर ऑल इट्स अ पार्टनरशिप, एवरीवन हैज टू बी इन्फॉर्म्ड एट लीस्ट. डिसीजन ये लोग ही लेंगे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर, बट दे हैव टू कीप हिम इन्फॉर्म्ड व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑफिस. सेकंड थिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सर्टिफाई कौन करेगा? सर्टिफाई मीन्स क्या? कौन साइन करके बताएगा कि दिस आर ट्रू एंड फेयर. So these are all the terms and conditions that has to be stipulated under the limited liability partnership agreement. Okay students, यहाँ तक सब कुछ समझा? Anyone having a doubt कि LLP agreement क्या होता है? Sir, actually, sorry, मेरा network connection की वजह से starting का miss हो गया. Can you explain it again? Yeah, sure. So limited liability partnership agreement is an agreement wherein all the partners and the designated partners have to sign it, and they have to confirm what is the name of the LLP, name of the business मतलब address of the LLP, कहाँ पे ये business होने वाला है conduct. Third thing, कितना partner contribution करेंगे, मतलब पार्टनर ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा, पार्टनर बी कितना, पार्टनर सी कितना, पार्टनर डी कितना, वो सबका कंट्रीब्यूशन. उसके बाद कंट्रीब्यूशन इन कैश आने वाला है या इन काइंड आने वाला है. काइंड में मतलब फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, गुड्स दे रहा हूँ, कोई असेट्स दे रहा हूँ, लाइक कंप्यूटर दे रहा हूँ, लैपटॉप दे रहा हूँ, तो ये इन काइंड हो गया. फिर कौन सा पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर है, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में भी उनकी कितनी अथॉरिटी है, कितनी पावर्स है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के पहले उनको हम दूसरे पार्टनर्स को पूछना पड़ेगा. This all are the terms and conditions that are to be given under the limited liability partnership agreement. Okay, sir. Thank you. Okay. Yeah, no issue. Then the next definition is partner. What is the definition of partner? Partner means a person who has to be a natural person or can be a artificial person. Very important thing. Partner can be a natural person or can be an artificial person. When I'm saying natural person means whom? People like us, the human beings. We are the natural people. People who are artificial means क्या? इसका मीनिंग ये होगा कि समझो 2 कंपनी है, कंपनी X एंड कंपनी Y. कंपनी X is based out in London, कंपनी Y is based out in India. कंपनी X और Y डिसाइड करती है कि उन्हें इंडिया में बिजनेस करना है. उन्हें क्या करना है? इंडिया में बिजनेस करना है. और इंडिया में बिजनेस करने के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक LLP चालू करेंगे. हम लोग क्या चालू करेंगे? LLP. सो इसके लिए अगर आप ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे पार्टनर कौन है? यहाँ पे कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं. तो पार्टनर कौन है? कंपनी है. दोनों कंपनी मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं. जॉइंट वेंचर जैसा नहीं समझना इसको. जॉइंट वेंचर एक अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस है, उसमें कंपनी होती है. यहाँ पे जॉइंट वेंचर नहीं हो रहा है. दे आर कमिंग एज अ पार्टनर्स and as a partner they are setting up an LLP, and that LLP will have a name of like XY LLP. XY नाम से उन लोग ने LLP स्टार्ट किया. क्या इधर तक सब समझे कि पार्टनर के अंदर सिर्फ नेचुरल पर्सन ही नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन भी पार्टनर बन सकते हैं? यहाँ तक समझे? क्योंकि मैं सर हाँ पार्टनर के नेम में कंपनी का नाम आएगा ना सर? हाँ एग्जैक्टली, पार्टनर के नेम में कंपनी का नाम आएगा इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. लेकिन अगर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाएंगे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये अलाउड ही नहीं है. द पार्टनर कैन ओनली बी अ नेचुरल पर्सन, इट कैन नॉट बी एन आर्टिफिशियल पर्सन. ओके सर. ओके, यहाँ सर आर्टिफिशियल का कोई एग्जांपल दो ना. आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी.
कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. उसकी एग्जिस्टेंस जो है इट हैज कम अंडर कंपनी लॉ. उसका इनकॉर्पोरेशन या उसका बर्थ हुआ है कंपनी लॉ के थ्रू, लेकिन उसको नेचुरल पर्सन नहीं बोल सकते हम. क्यों? क्योंकि वो कोई सांस नहीं ले सकती हमारे जैसा. इट हैज नो फीलिंग्स लाइक अस. It is just incorporated under the act. It has been created by the law. Similarly, LLP is also considered as an artificial person. क्यों? क्योंकि it is created by law. When I'm saying it is created by law means क्या? It is भले ही समझो मैंने और मेरे फ्रेंड केयूर ने मिलके ये पार्टनरशिप LLP चालू की है, लेकिन ये LLP को हमने रजिस्टर किया अंडर द LLP एक्ट और उसके थ्रू ये नाम आया है. ऐसा नहीं कि ऐसे ही नाम आ जाते हैं एलएलपीज के, नहीं. एक प्रोसेस होता है, आपको वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है तो आपको वो नेम मिलते हैं. समझे आप लोग? एनीवन हैविंग अ डाउट ऑन दिस? हेलो नो सर. ओके. अभी मुझे बताइए, मैंने जब भी स्टार्ट किया पूरा ये चैप्टर तो मैंने आप लोग को बोला कि मैं और केयूर है, हमारे पास पैसा है लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं है, इसलिए हम दो लोगों को बोलते हैं कि तू हमारे बिजनेस को मैनेज करो. तो वो हो गए हमारे डेजिग्नेटेड पर्सन, राइट? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें मैं बोल रहा हूँ कंपनी एक्स इन यूके एंड कंपनी वाई इन इंडिया आर द पार्टनर्स. तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन बनेंगे? वो लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो नहीं बन सकते क्योंकि दे आर नॉट नेचुरल पर्सन्स, राइट? They cannot take the decisions by themselves. Why? Because they are the companies. Companies cannot act on their own. उनके पास ब्रेन थोड़ी होता है कंपनी के पास. तो who will be the designated partners? Can anyone tell me? आप लोग को मेरा क्वेश्चन समझा ना, या मैं वापस रिपीट करूं? सर कैन यू रिपीट प्लीज? ओके. सो देखो, मैं एग्जांपल ये ले रहा हूं कि एक एलएलपी बना रहा हूं और एलएलपी कौन बना रहा है? दो कंपनी, और वो दो कंपनी बन के पार्टनर है. यहाँ पे नेचुरल पर्सन पार्टनर नहीं बन रहा है. कौन बन रहा है? कंपनीज. और वो दो कंपनीज अभी बोल रहे हैं कि हम लोग को इंडिया में एलएलपी करना है, और वो लोग ने इंडिया के एलएलपी में बिजनेस रजिस्टर भी कर दिया है. अब ये एलएलपी को मैनेज कौन करेगा? कंपनी खुद से तो डिसीजन नहीं लेती ना. आदित्य बिरला ग्रुप है या रिलायंस ग्रुप है या भारतीय एयरटेल है, वो खुद से डिसीजन लेती है कि उनके पीछे कोई रहता है जो डिसीजंस लेते? नेचुरल पर्संस. अभी समझा मेरा क्वेश्चन आप लोगों को? यस सर. तो ये केस में जब कंपनी ए एंड कंपनी बी मिलके पार्टनर बन रही है, तो ये केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर तो चाहिए ही चाहिए. एलएलपी में बिजनेस डिसीजंस वो लोग ही लेते हैं. तो ये केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? कैन एनीवन टेल मी? सर दोनों कंपनीज में से कोई एक पर्सन. Okay. Anyone else? Can anyone else say something on this? Okay. So जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा, so क्या होगा? कंपनी ए और कंपनी बी डिसाइड करेंगे कि उनके ऑफिस में से कोई एक एक पर्सन को वो लोग नॉमिनेट करेंगे. They will nominate one person who will be the designated partner on their behalf. यहाँ तक समझा सबको? And they will be managing the business. So partner कौन है? कंपनी. और designated partner कौन है? Individuals. समझे? So हमेशा याद रखना, LLP में पार्टनर कोई भी बन सकता है. कंपनी भी पार्टनर बन सकती है और LLP भी किसी और में LLP में पार्टनर बन सकती है. लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा नहीं हो सकता. पार्टनरशिप एक्ट में नेचुरल पर्सन कैन ओनली बी द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस. ओके एवरीवन? यस सर. ओके. सेकेंड थिंग, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. एक बार आपने एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कर दिया तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी रूल्स एंड गाइडलाइंस आपको एप्लीकेबल नहीं है. ये यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिकली लिखने का रीजन क्या है इंडियन लॉ के कंटेक्स्ट में, कि कोई भी ऐसा ना सोचे कि
एक बार मैंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस ओपन किया तो मैं इंडियन पार्टनरशिप के अंदर भी कवर्ड होऊंगा और मैं इंडियन एलएलपी में नहीं, आप सिर्फ इंडियन एलएलपी दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर ही कवर्ड होंगे। आपको उसी के रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, फिर पार्टनर्स, तो पार्टनर्स में मैंने जो आपको बताया, इट कैन बी नेचुरल पर्सन ऑल्सो, इट कैन बी अ आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इट हैज टू बी 2, इट कैन नॉट गो बिलो 2। अभी मुझे एक बात बताइए, समझो 2 पार्टनर्स है, दोनों नेचुरल पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ओके, मिस्टर ए वेडिंग फंक्शन के लिए मुंबई से पुणे ट्रैवल कर रहे थे और सडनली समझो मुंबई पुणे हाईवे पे उनका एक्सीडेंट हो गया। ओके, सो अभी एलएलपी में पार्टनर कौन बचा? खाली मिस्टर बी। तो मिस्टर बी को एज पर इंडियन एलएलपी एक्ट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनको विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ cessation of Mr. A, he will have to nominate someone who can be a partner at the earliest, that is within period of 6 months। अगर 6 months तक कोई भी एलएलपी में नया पार्टनर नहीं आया एंड खाली मिस्टर बी एलएलपी को चला रहे, तो ट्रिब्यूनल कैन पास एन ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन, दैट मीन्स ताला लगा दो और ये एलएलपी बंद करे। वो हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सर बट विद इन 6 months अगर वो मिस्टर जो ए है वो रिकवर हो गए तो? हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, डेथ हो गई, ही इज डेड, ही इज नो मोर। It has to be no more. If he is recovering, for example, if he is still in ICU or if he still is alive, even if in ICU he is not conscious, worst to worst case we are taking, still he will be considered as a partner. But the moment he has died, then he is no more a partner because he has died. Okay? मुझे पूछना था कि अगर मिस्टर ए के फैमिली से कोई पार्टनर बन सकता है? That depends on your LLP agreement. If your LLP agreement says that after the death of Mr. A, his son will take over the business with Mr. B, then yes. But that time his son has to be at the age of 18 or plus of 18. He cannot be below 18. A minor cannot be a partner in partnership in LLP form. In partnership form he can be, but not in LLP. So अगर 18 years के plus age है उनके son की या उनके daughter की, he or she can become a partner at that moment. But if it is not, then he or she cannot become a partner at that time. Okay? Okay, sure. Okay. लास्ट में है डेजिग्नेटेड पार्टनर। मैंने यहाँ पे एक और डेजिग्नेटेड पार्टनर वापस क्यों लिखा है, उसका रीजन है, मैंने इसलिए लिखा है कि आफ्टर मतलब कंपनी लॉ में एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको डायरेक्टर रखने हैं तो एटलीस्ट एक डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया में रुका हो लास्ट 182 डेज में, लास्ट ईयर में। सो वैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए ये एक रिक्वायरमेंट है कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, लेकिन उनमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर दैट इज मिस्टर ए और बी में से एनी वन हैज टू बी इन इंडिया एटलीस्ट फॉर लास्ट 182 डेज। इसका रैशनल क्या है, इसका रीजन क्या है? इतने सारे स्कैम होते हैं बिजनेस में, कोई डायरेक्टर्स भाग जाते, कोई शेयर होल्डर्स भाग जाते कंपनी छोड़ के, किसी को पता भी नहीं चलता वो किधर चले गए। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो लास्ट 182 डेज में इंडिया में रुका हो, बिकॉज एक बार वो इंडिया में रुका तो क्या हो जाएगा 182 डेज में, उसको इंडिया के रूल्स एंड गाइडलाइंस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, इनकम टैक्स के अंडर कवर हो जाएगा, दूसरे फेमा लॉ में कवर हो जाएगा, और एक बार वो कवर हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका एक डेटाबेस बन जाएगा कि ये पर्सन यहाँ पे था, इतने टाइम से इधर था, और ये एक ट्रैक रख सकते हैं कि कल उठ के समझो ये एलएलपी अगर कोई भी किसी ने बनाई है और वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रही है, और जब तक पुलिस को पता चले, they can find that person. Why? Because he was there in India since last 182 days. लेकिन समझो दोनों फॉरेनर ही है, तो you cannot go and catch that guy ना, because he is in foreign jurisdiction now. So I didn't understand. Okay, so समझो मिस्टर ए है and मिस्टर बी है, ठीक है? These two are the partners and they are also the designated partners. But इंडियन एलएलपी एक्ट क्या बोलता है, 2 में से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर, या तो मिस्टर ए या तो मिस्टर बी, लास्ट ईयर मींस प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज, पूरे साल में कितने डेज होते हैं 365,
उसमें से 182 डेज इंडिया में रहने चाहिए मतलब क्या, इंडिया में उनका रेसिडेंशियल स्टेटस आना चाहिए, उसके बाद ही वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं। अगर दोनों के दोनों फॉरेनर ही है और लास्ट ईयर 182 डेज इंडिया में नहीं थे, तो उनका डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने का सपना रह जाएगा। दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। समझे? ओके सर, Yeah. यस सर। तो सर या ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इंडियन सिटीजनशिप चाहिए उसके लिए? नहीं, इंडियन सिटीजनशिप नहीं, 182 डेज आप होने चाहिए लास्ट ईयर में, अच्छा ओके। और वो भी 2 में से 1। अभी समझो 6 है तो 6 में से 1, अगर 20 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो 20 में से एक ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में रुके, ताकि जो भी इंडिया की एम्बेसी हो उसके ऊपर डिसीजन ले सकती है उस बेसिस पे। अच्छा ओके। ओके, आई एम मूविंग टू So द should there हाँ सॉरी, be minimum number of designated partners? कि एक होगा तो भी चलेगा? नहीं एक नहीं, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर भी 2 एंड पार्टनर्स भी 2, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। Oh. Okay, I'm moving to the next slide now, students. Is anyone having a doubt over here, or I move to the next slide? Okay, I move to the next slide now. सर, Yeah. आपने जैसे बोला कि if we are doing something illegal, Yes. तो they'll catch hold the person who was staying in India or First he will they First one, catch hold, okay. yeah, because see he has now come under the Indian jurisdiction ना, for 182 days रहते हैं ना, तो आप देखोगे आपको इनकम टैक्स में भी आएगा कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में आ जाता है। फिर मतलब एक आप Okay. तो आपके सारे के लाइक पैन कार्ड एंड आधार कार्ड ये सब आपके पास डिटेल्स आ जाते हैं, सो यू आर इजीली ट्रेसेबल, अदरवाइज यू विल नेवर बी ट्रेस। वैसा तो कांसेप्ट से Okay, sir. ओके। Now we go to the next slide, that is characteristics. So first, characteristics and salient features. What are characteristics and salient features? Characteristics and salient features in the sense कि LLP जो है उसके पास क्या क्या फीचर्स है, मतलब जैसे मोबाइल का एक फीचर होता है, राइट? Now this is a mobile. What are the features of the mobile? It is a touchscreen mobile. It is an Android mobile. It is having 48 megapixel camera. It has 6 GB RAM. It has 512 GB hard disk memory. These are all what? These are all the features of mobile. Similarly, there are features of LLP. When I'm saying features of LLP, what does it mean? कि ये business organization के क्या features है, इनके क्या benefits है, इनके पास क्या क्या ऐसे characteristics है जिसके कारण ये बिजनेस करना चाहिए, ये बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही आपको सेटअप करना चाहिए। सो फर्स्ट इज बॉडी कॉर्पोरेट, जो मैंने आप लोग को प्रीवियस स्लाइड में भी समझाया। बॉडी कॉर्पोरेट मींस क्या? वंस यू आर गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर द LLP एक्ट, तो यू विल बी क्लासिफाइड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सेकंड, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग क्या होता है? परपेचुअल मींस क्या? फॉरएवर। सक्सेशन मींस क्या? someone carries on the business, the legacy has to be carried on. So what is perpetual succession? So perpetual succession means आज की तारीख में समझो 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। पार्टनर ए जैसा मैंने आपको एग्जांपल एक दिया था, पार्टनर ए समझो ट्रैवल कर रहा है, मुंबई से पुणे जा रहे हैं और उसकी डेथ हो गई, ओके? एंड यहाँ पे पार्टनर बी एंड पार्टनर सी है, उनको पता चलता है कि पार्टनर ए की डेथ हो गई। स्टिल द बिजनेस कैन कंटिन्यू, व्हाई? बिकॉज देयर आर स्टिल 2 पार्टनर्स। समझो नेक्स्ट मंथ पार्टनर बी की भी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? पार्टनर बी की भी डेथ हो जाती है। स्टिल पार्टनर सी कैन कंटिन्यू द बिजनेस within how many months? 6 months. Till 6 months he can continue the same business. How? He has the timeline as per the LLP Act कि 6 महीने में आपको कोई और पार्टनर अपॉइंट करना है। So what is perpetual succession? समझो अगर तीनों पार्टनर की डेथ हो गई, समझो एक वो लोग तीनों एक कोई फैमिली ट्रिप में गए, तीनों पार्टनर ए बी सी, एंड तीनों पार्टनर की वो ट्रिप में डेथ हो गई, तो भी LLP बंद नहीं होगा, बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस चलाने वाले बंद हो गए। चलाने वाले मींस कौन? डिसीजन लेने वाले। लेकिन LLP का जो एग्जिस्टेंस है, LLP का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो कैंसिल नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा? कैंसिल नहीं होगा। हमेशा याद रखना
कि परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग ये है पार्टनर्स में कम, पार्टनर्स में गो, बट बिजनेस रिमेन्स फॉर एवर. दैट मीन्स व्हाट? तीनों पार्टनर की भी डेथ हो जाने दो तो भी एलएलपी बंद नहीं होगी. एलएलपी बंद कैसे हो सकती है? लॉ के प्रोसेस से. लॉ का प्रोसेस अगर उसको बंद करना चाहता है, ताला लगाना चाहता है, तो ही वो हो सकता है. बाकी खुद से नहीं हो सकती कि तीनों पार्टनर की डेथ हो गई तो बंद कर दो, नहीं. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये है कि एक बार दोनों पार्टनर की डेथ हो गई और अगर वो लोग ने कुछ लिखा नहीं अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कि हमारे मरने के बाद कोई हमारे फैमिली में से कोई नॉमिनेट करेगा, पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगा, तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद, बिजनेस उनका खत्म हो गया, क्लोज. लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है. एलएलपी में 3 पार्टनर की डेथ हो गई तो एलएलपी अभी भी है. उसके जो सक्सेसर्स है, वो पार्टनर्स के जो फैमिली मेंबर्स है, they have to come up and say that we want to close down this LLP now. If they do not say it like that, it will be still considered that the LLP is still in existence and it has not yet been dissolved and उसको ताला नहीं लगाया किसी ने. क्या सब लोग समझे ये कंसेप्ट? सर हाँ. सॉरी, एलएलपी में नए पार्टनर्स कैसे अपॉइंट होंगे? एलएलपी में नए पार्टनर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? सो एलएलपी में देखो, एलएलपी हो या पार्टनरशिप फॉर्म हो, न्यू पार्टनर्स अपॉइंटमेंट का एक ही प्रोसेस है. अगर समझो मैं और मेरा फ्रेंड है केयूर, हम लोग दोनों एलएलपी में पार्टनर्स है और हम लोग को अगर समझो कोई कंट्रीब्यूशन चाहिए या हम लोग को कोई और एक पार्टनर को ऐड करना है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी हमारे कोई नॉन पर्सन को ही हम लोग अप्रोच करेंगे. एंड देन जैसे कंपनी में इंटरव्यू प्रोसेस होता है, यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस टाइप होता है जहाँ पे वो लोग उनको पूछते हैं कि आप हमारे बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूशन लाओगे, आपके हमारे बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप हमसे कितना कंट्रीब्यूशन लोगे, आप हमारे पार्टनर एलएलपी बिजनेस के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनोगे कि नहीं. यही प्रोसेस होता है. कोई ऐसा अलग से प्रोसेस नहीं है कि कोई एप्लीकेशन देना है, कोई टेंडर आना है, नहीं. जिनको एलएलपी में पार्टनर बनना है वो उधर जा सकते हैं एलएलपी में और बोल सकते हैं कि आई वांट टू बिकम अ पार्टनर इन योर एलएलपी. आई हैव मनी, आई कैन कंट्रीब्यूट, I have skills, I can run the business, I can become a designated partner as well, and then they can run the business as well. नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, सब पार्टनर्स मर गए तो कैसे होगा प्रोसेस? अगर सब पार्टनर्स अगर मर गए तो जो उनके फैमिली मेंबर्स है, they will have to come up and decide whether any of them is interested. क्योंकि क्या होता है, सक्सेशन होता है, राइट? सक्सेशन है. The family members have to decide whether they want to be doing the business or not. अभी समझो वो फैमिली मेंबर्स में कोई भी बचा नहीं है, मतलब समझो सिर्फ वो फैमिली मेंबर्स में से किसी को इंटरेस्ट नहीं है वो बिजनेस चलाने का. एंड दे से कि हमें तो बिजनेस नहीं चलाना है, लेकिन अगर कोई हमको स्किल्ड एम्प्लॉय मिलता है जो ये बिजनेस करना चाहता है, तो हम लोग वो सर्च करेंगे. वी विल check out if there are any such candidates who want to run this business, and we will appoint them as the designated partner and we will continue as the partners. Okay, sir. Thank you. Yeah, anyone else was also speaking something? Hello. Okay, I move to the next point. सेपरेट लीगल एंटिटी. जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बोला, क्यों सेपरेट लीगल एंटिटी? क्योंकि ये एंटिटी, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन अंडर एलएलपी एक्ट हुआ है, तो इसकी एक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन है. आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ? एलएलपी के नाम से जाना जाएगा, मेरे नाम से नहीं जाना जाएगा. इवन इफ एलएलपी में समझो मेरा नाम है संजय, तो भी लोग ऐसा बोलेंगे संजय एलएलपी. कोई ऐसा नहीं बोल सकता संजय, नहीं, सबको वर्ड यूज करना पड़ेगा संजय एलएलपी. ओके, इसलिए एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. म्यूचुअल एजेंसी मींस क्या? देखिए, जो भी पार्टनर्स के डिसीजन है वो म्यूचुअल डिसीजंस होंगे, गिव एंड टेक रिलेशंस टाइप. इट इज नॉट लाइक प्रिंसिपल एंड एजेंट. नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई एजेंट नहीं. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास, दोनों के पास सेम लेवल ऑफ पावर्स है, सेम लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग है. दोनों एक दूसरे से कंसल्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के व्यूज लेंगे, ओपिनियन लेंगे, एंड द बेस्ट डिसीजन जिनका भी होगा, जो भी बेस्ट व्यू एंड कंसेंट रहेगा, वो डिसीजन लेंगे फॉर द बिजनेस. एलएलपी एग्रीमेंट में जैसा मैंने आपको बोला, जो भी पार्टनर्स है उनको एलएलपी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. एलएलपी एग्रीमेंट में नेम ऑफ द एलएलपी, मतलब नेम क्या है बिजनेस का, फिर उसके बाद ऑफिस का एड्रेस कौन सा है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ है, कितने पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, कितने पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन आना पेंडिंग है, वो सब कुछ डिटेल्स आपके एलएलपी एग्रीमेंट में होगा. फिर टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे. कोई एलएलपी जो रहती है, समझो कोई बहुत बड़ी भी एलएलपीज होती है,
तो उनमें ये भी होता है कि साल में 2 बार हम लोग मीटिंग करेंगे। मीटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा बिजनेस कैसा था ये साल में और हमारा अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल्स कैसे पोजीशन है, वेदर वी आर गोइंग गुड इन बिजनेस और नॉट। सो वैसा। फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जैसा मैंने आपको बोला, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों माना जाता है एलएलपी को? क्योंकि एलएलपी का बर्थ, एलएलपी का एग्जिस्टेंस किससे आया है? लॉ के थ्रू। उसको कोई मैंने जन्म नहीं दिया या कोई इंडिविजुअल ने जन्म नहीं दिया है, उसका पूरा एग्जिस्टेंस लॉ के थ्रू आया है। इवन दो उसको बनाने वाले नेचुरल पर्सन है या उसको बनाने वाले आर्टिफिशियल पर्सन है, पर उसको एग्जिस्टेंस लाने में लॉ का रिक्वायरमेंट है और लॉ की हेल्प लेनी पड़ती है और लॉ के अंडर वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि कल उठ के कोई भी एलएलपी के अंदर कुछ लॉस होता है और क्रेडिटर्स को पैसा रीपे करना पड़ता है, तो दैट विल नॉट कम ऑन द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइन और माय पार्टनर, इट विल बी ऑन द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी ओनली, दैट्स इट, नो नॉट ऑन एनीवन एल्स। कॉमन सील, कॉमन सील का कंसेप्ट क्या होता है? ये एक सिग्नेचर होती है, जैसे आज की तारीख में रबर स्टैम्प एंड राउंड स्टैम्प होता है, वैसे एक कॉमन सील होती है। आप आपको अगर कभी भी देखना है तो आप गूगल पे भी देख सकते हो। कॉमन सील एक सिग्नेचर होती है। तो क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जरूरी नहीं है कि हर पर्सन इज अवेलेबल एट द टाइम फॉर सिग्नेचर। सी, कॉमन सील का कंसेप्ट बहुत पुराने टाइम का था, मतलब अराउंड 30 to 40 ईयर्स अगो। तो 30 to 40 ईयर्स अगो क्या होता था कि कॉमन सील यूज होती थी। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, जोधा अकबर और जो भी ऐसे एम्परर्स की मूवीज होती है, उसमें ऐसे मोहर लगाते हो लोग पेजेस पे, तो वैसा ही कॉमन सील होती है, वो आपको मोहर लगाते हैं आप लोग पेजेस पे और उसमें सिग्नेचर आ जाते हैं। तो कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द एलएलपी फॉर्म, ऑफ द एलएलपी बिजनेस। ओके। लिमिटेड लायबिलिटी, जो मैंने आपको कहा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट यही है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड है मींस क्या? अगर मैंने बोला है कि मैं 2 करोड़ रुपया इस बिजनेस को दूंगा, तो 2 करोड़ रुपये तक ही मेरी लायबिलिटी। 2 करोड़ मैंने दिए और मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई। वो 2 करोड़ देने के बाद मुझे कोई भी आके नहीं बोल सकता कि आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया नहीं। लेकिन अगर मैंने 1 करोड़ 70 lakhs दिया है और 30 lakhs अभी भी पेंडिंग है और बिजनेस को रिक्वायरमेंट है 30 lakhs की वो टाइम पे, तो दे कैन डिमांड दैट फ्रॉम मी बिकॉज दैट इज व्हाट आई हैड गिवन टू देम इन राइटिंग दैट आई विल कंट्रीब्यूट 2 crores एट द टाइम ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ दिस बिजनेस। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, management of the business and limited liability partnership is by the designated partners and not by the partners. Maximum and minimum number of persons, जैसा मैंने आपको बोला, मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस ऑफ प्रॉफिट ओनली, यहाँ पे ये बिजनेस ऑफ प्रॉफिट ओनली क्यों वर्ड पे एम्फोसिस हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको कहा कि कंपनी लॉ में ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी कंपनी का कुछ एक लिमिट है, वो लिमिट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैरिटी देनी पड़ती है। लेकिन एलएलपी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, पूरा का पूरा पैसा आपका और आप ही यूज करो। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का क्या कंसेप्ट है? समझो कल उठ के आप एलएलपी चला रहे हो और किसी को लगता है कि आप कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हो, तो कोई भी आपके एलएलपी के ऊपर एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है एलएलपी के नाम पे। आपके नाम पे नहीं आएगी। आपके नाम पे क्यों कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती? क्योंकि एलएलपी अलग है और आप अलग हो। और वो कैसे? सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण, क्योंकि आप अलग हो और एलएलपी अलग है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, हाँ बोलिए। यस सर, अगर कोई एक बिजनेस मतलब पार्टनरशिप में कोई पार्टनर है जो इलीगल बिजनेस कर रहा है, तो उस पे मतलब कोई भी मतलब एक्शन नहीं लिया जाएगा? देखो, पार्टनरशिप फॉर्म तो उसका ही है ना। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अलग कंसेप्ट है और एलएलपी में अलग है। एलएलपी में अगर समझो आपने देखा है, समझो 2 पार्टनर है, पार्टनर ए एंड बी, ठीक है। पार्टनर ए इज कैरिंग आउट सम इलीगल एक्टिविटीज विदाउट द नॉलेज ऑफ पार्टनर बी, देन इट विल बी एंटायरली ऑन द पार्टनर ए, जो भी उसने इलीगल एक्टिविटीज कैरी आउट की है। और अगर पार्टनर बी को पता था कि उसने इलीगल एक्टिविटीज की है कैरिड, तो इट विल बी ऑन बोथ द पार्टनर्स टू पे द पेनल्टी एंड फाइन अमाउंट फॉर दोस इलीगल एक्टिविटीज। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो इलीगल एक्टिविटीज कैरिड आउट हुई है ना, उसमें जो केस होता है, मतलब जब फाइल होता है कंप्लेंट, तो कंप्लेंट पार्टनर ए और बी के नाम पे नहीं होती है। कंप्लेंट फाइल होती है
AB LLP के नाम पे, दैट इज द नेम ऑफ द LLP, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑन द नेम ऑफ द पार्टनर्स। समझे? ओके सर। हाँ, इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो मैंने आपको बोला, सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर अलग है और LLP अलग है, एक बीच में एक दीवार है। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज अ वन थिन वॉल के ये साइड पार्टनर्स है जिन लोग ने वो पूरी LLP को बनाया है, और वॉल के सेकेंड साइड पे एक पूरी LLP है जो बिजनेस कर रही है। कल उठ के अगर पता चलता है कि ये LLP कुछ फ्रॉड कर रही है या इलीगल एक्टिविटीज कर रही है, तो पहले LLP के नाम पे ही शो कॉज नोटिस आएगा, पहले LLP के नाम पे ही कंप्लेंट फाइल होगी। वो इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चलेगा कि पार्टनर A एंड B इन्वॉल्व है ये सब इलीगल एक्टिविटीज में, और इसलिए अभी LLP को बंद कर देना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का मीनिंग क्या है? समझो एक LLP है ABC LLP और एक LLP XYZ LLP। अगर समझो दोनों को मिलके बिजनेस करना है तो दोनों का मर्जर कर सकते हो आप। दोनों का क्या कर सकते हो? मर्जर। उसमें क्या होगा, एक LLP का एग्जिस्टेंस पूरा कंप्लीटली बंद हो जाएगा, वो LLP अभी नहीं रहेगी, और सिर्फ एक LLP दोनों फर्म के बीच के 6 पार्टनर्स के नाम से चलेगी, ABC XYZ LLP, एक ही LLP बचेगी। Conversion into LLP. What do you mean by the term conversion into LLP? Conversion into LLP का मीनिंग ये है, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हो, या अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है, या अगर आपकी कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, व्हाट आई एम सेइंग इज पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हो, या आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है, या आपकी कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो आप अगर चाहो तो वो कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू LLP। उसको कन्वर्ट कैसे करोगे? उसको कन्वर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पार्टनरशिप फॉर्म में से आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देना पड़ेगा LLP के अंदर, LLP एक्ट के अंदर, और आप LLP एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाओगे और आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। एनीवन हैविंग अ डाउट टिल any of this concept till now? सर कन्वर्जन इनटू LLP इज लाइक, अगर मुझे पार्टनरशिप को LLP में कन्वर्ट करना है Right, तो right. आई कैन रजिस्टर, राइट? Yes. So partnership firm can register, can get themselves converted into LLP. A private company can get themselves converted into LLP. An unlisted public company can get itself converted into LLP. But listed company जो शेयर मार्केट पे चल रही है ना, लिस्टेड कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, या अंबुजा सीमेंट है, या ACC सीमेंट है, या भारतीय एयरटेल लिमिटेड, they cannot convert itself into LLP. No, वो लिस्टेड कंपनी को अलाउड ही नहीं है LLP कन्वर्ट होना। ओनली अनलिस्टेड कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, they are all private limited companies. If they want, they can convert into LLP as well. Okay. फिर e-filing of document। देखिए ये जो LLP है ना, it is governed under Limited Liability Partnership Act, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़े बहुत फॉर्म्स बनाए। जब मैं फॉर्म्स बोलता हूँ उसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स आपको एक वेबसाइट पे मिलते हैं, और वहां पे जाके आपको सब रजिस्ट्रेशन, आपका नेम रजिस्ट्रेशन, आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपके LLP एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये सब आपको वहां पे कंप्लीट करना पड़ता है। इसलिए उसके फीचर्स में आता है कि लास्ट में आपको अगर कुछ भी करना है LLP के रिलेटेड, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिमूवल ऑफ पार्टनर, या चेंज इन डेजिग्नेशन ऑफ अ पार्टनर। समझो कोई पहले पार्टनर था, अभी उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है, या कोई पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर था, अभी उसको नॉर्मल पार्टनर बनाना है, तो ये सब कुछ आपको इंटीमेट करना पड़ता है। इंटीमेट मीन्स क्या? आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है टू रजिस्ट्रार ऑफ LLPs। रजिस्ट्रार ऑफ LLP मीन्स क्या? एक रजिस्ट्रार होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर एक स्टेट में, वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि ये महाराष्ट्र स्टेट में इतने सारे LLP है, फिर उसके बाद नोएडा में इतने सारे LLP है, उत्तर प्रदेश में इतने सारे LLP है, वो रिकॉर्ड करता है, राजस्थान में इतने सारे LLP है। तो फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग क्या है? आपको रजिस्ट्रेशन से लेके LLP का डिसोल्यूशन तक, LLP को बंद करने तक जो भी प्रोसेस है, वो सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स फाइल कैसे होते हैं? ऑनलाइन होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कोई फिजिकली सबमिशन नहीं होता है किधर भी, आपको ऑनलाइन ही फाइल करने हैं और आपको ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं। ओके एवरीवन?
लास्ट में फॉरेन एलएलपी, जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि कोई भी अगर बिजनेस करना चाहता, कोई भी आउटसाइडर एलएलपी है जो यूके गवर्नमेंट यूके जुरिस्डिक्शन में एस्टैब्लिश्ड है और उसे इंडिया में करना है, तो दे कैन डू इट वाया फॉरेन एलएलपी एज वेल। यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आया है? मैं आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि we have like another 10 to 12 minutes for this lecture. Yes, sir. All the students, anyone have any doubt will take. I will take. I have no issues. If anyone feels के मुझे फोन पे नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं पूछना है, तो you guys can note down my number. At the end of the lecture, I will give you my contact number. You can always WhatsApp me and ask me your doubts as well. Okay? सर Yes. इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट वापस से बताओ ना। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन बेसिकली क्या है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या कि समझो आप एलएलपी का बिजनेस चला रहे हो और किसी भी पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ये एलएलपी का जो बिजनेस चला रहे हो ये कोई इलीगल एक्टिविटीज के लिए चला रहे हो, तो ही कैन गो एंड फाइल अ कंप्लेंट, बट ही विल फाइल द कंप्लेंट इन द नेम ऑफ होम, इन द नेम ऑफ एलएलपी, नॉट इन द नेम ऑफ द पार्टनर। दे कैन नॉट फाइल अ नेम इन द इन्वेस्टिगेशन का कंप्लेंट। पुलिस में जाके केस किसके सामने रजिस्टर्ड होगा? एलएलपी के नाम पे, पार्टनर्स के नाम पे नहीं। ओके सर। सेकेंडली, जैसा मैंने आपको बोला ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में कि हर एक एलएलपी को एक फाइलिंग करनी होती है कि इतने सारे पार्टनर्स है, इनमें से ये पार्टनर आया, इनमें से ये पार्टनर गया, ये पार्टनर की डेथ हो गई या ये पार्टनर अभी रिटायर हो गए, ठीक है? तो ये फाइलिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की, ओके, वेबसाइट पे ऑनलाइन। तो समझो अगर आप ये फाइलिंग नहीं कर रहे हो तो रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी जो है वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है बाय स्टार्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन। वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि आप ये फाइलिंग्स क्यों नहीं कर रहे हो इतने टाइम से। ओके ओके सर। हाँ सर। या आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स। सर हाँ बोलिए। सर आपने बोला ना फाइलिंग अगर मतलब नहीं करते ऑनलाइन तो एक्शन लेते हैं। राइट। तो सर पर मतलब ये तो मतलब क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के पहले होता है ना सर डॉक्यूमेंट? नहीं, सो देखो क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में ना साल में कोई फॉर्म फाइल नहीं करने होते। एलएलपी में पीछे आएगा जो मेरे नेक्स्ट स्लाइड्स में, एलएलपी में क्या होता है, आपको साल में 2 फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं कंपलसरी। एक होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, मतलब आपके अकाउंट्स, कि आपके अकाउंट्स का पोजीशन क्या है फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च। सेकेंड होता है एक स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी मतलब क्या? आप लोग ने हमेशा अकाउंट्स में पढ़ा होगा सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट मींस क्या? liabilities are greater than assets and solvent means क्या? assets are greater than liabilities। तो हर एक एलएलपी को एक ईयर एंड पे विद इन 60 days ऑफ द ईयर एंड, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर एंड, उनको फॉर्म फाइल करना पड़ता है और वो फॉर्म में उनको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है, कंफर्मेशन देना पड़ता है। we hereby confirm that ABC LLP is having sufficient funds for making the payments of its creditors। सो वो फाइलिंग अगर आप साल भर साल नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको हर साल करना है, वो आपका एक कंप्लायंस है, वो आपको करना ही है। और अगर आप वो नहीं कर रहे हो फाइल फॉर्म, तो रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ओके सर, समझे आप? यस सर। ओके मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं। कोई स्टूडेंट्स को ये स्लाइड पे डाउट है? क्योंकि देखिए मेन चैप्टर आपका यही स्लाइड पे है, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। यहाँ पे अगर किधर भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ ही लीजिए। बॉडी कॉर्पोरेट समझा सकते हैं? हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट। सो सी, बॉडी कॉर्पोरेट का बेसिकली कंसेप्ट का मीनिंग क्या है कि कंपनी लॉ में और एलएलपी में once you are getting yourself registered under the act, तो you are called as a body corporate। body corporate in the sense क्या? आपकी एक आइडेंटिफिकेशन अलग से आ जाती है, तो आपको आपके नाम से नहीं जाना जाता। मतलब देखो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसको चलाने वाले मुकेश अंबानी है, लेकिन उसका कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज से चलता है। तो कल उठ के कुछ भी होगा तो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम आएगा। तो वही बॉडी कॉर्पोरेट का फीचर है कि बॉडी कॉर्पोरेट मींस यू आर गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट ऑफ एलएलपी एक्ट और अंडर कंपनीज एक्ट, एंड यू आर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट। एंड बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको अगर किसी, समझो अभी ये एलएलपी है,
ठीक है, ये एलएलपी को किसी और एलएलपी में पार्टनर बनना है या ये एलएलपी को किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो ये क्यों कर सकती है? क्योंकि उसके पास स्टेटस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर उसके पास स्टेटस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्ट नहीं कर सकते कंपनी के स्टॉक मार्केट में। वो लोग पार्टनर्स अपने पर्सनल कैपेसिटी में करते हैं इन्वेस्टमेंट्स। पार्टनरशिप फर्म के नाम से वो लोग इन्वेस्टमेंट्स रूट नहीं कर पाते। ओके सर, समझा। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूं? एनीवन हैव एनी डाउट? सो हमेशा याद रखना, एलएलपी में आपको सबसे बेसिक कंसेप्ट आपको पहले यही याद रखना है कि उसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी है। इसका मतलब क्या? पार्टनर उतना ही पैसा देगा जितना उसने बोला था मैं दूंगा, जितना उसने कंट्रीब्यूशन करने का बोला था, उससे ऊपर वो 1 रुपया नहीं देगा। अगर एलएलपी बंद भी हो जावे ना तो भी वो पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। दूसरा, 2 मिनिमम पार्टनर चाहिए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम चाहिए। उनमें से भी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होना चाहिए? जो इंडिया में लास्ट 182 डेज रुका था। अगर वो ऐसा कोई नहीं हुआ तो फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर उनको तुरंत अपॉइंट करना पड़ेगा, वरना ये एलएलपी के अंडर वायलेशन माना जाएगा। तीसरा, एलएलपी के अंदर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का कंसेप्ट क्या है? एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में एक वॉल है। एलएलपी इस साइड है और पार्टनर्स इस साइड है। जो एलएलपी के साथ होगा वो एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो पार्टनर्स के साथ होगा वो पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, एंड उसके बाद जो मैंने आपको ये समझाया, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? कितने भी पार्टनर्स आवे, कितने भी पार्टनर्स जाए, एलएलपी बंद नहीं होता है। एलएलपी तभी बंद होता है जब कोई एप्लीकेशन देता है कि हमें ये एलएलपी बिजनेस बंद करना है। ओके Sir, artificial legal person and separate legal entity is one and the same, right? No. So artificial legal person is that he is created under the law. He is created under a law and only law can kill him. No one else. You cannot go and मतलब तुम ऐसे बंदूक लेके जाओगे तो एलएलपी को गोली नहीं मार सकते, because it is an artificial legal person. It is an artificial legal person because it has been created by law and it will be dissolved. It will be shut down also by law. Whereas separate legal entity, what it says कि पार्टनर और उस पार्टनर्स और एलएलपी ये दो के बीच में एक दीवार है, एक वॉल है। वॉल के उस साइड पार्टनर्स रहते हैं और वॉल के ये साइड में एलएलपी का बिजनेस चलता है। तो अगर कल उठ के एलएलपी बिजनेस अगर लॉसेस में चली जाती है तो पार्टनर उतना ही पैसा देगा जितना उसने कंट्रीब्यूट किया। पार्टनर वो पैसा नहीं देगा जितना एलएलपी को देना है दूसरों को। समझे आप? फॉर एग्जांपल एलएलपी बिजनेस में 50 लाख का लॉस हो गया, ठीक है, और एलएलपी के पास सिर्फ 30 लाख है लोगों को रिपे करने का, तो वो सिर्फ 30 लाख दे पाएगा, उससे ज्यादा एलएलपी पैसा नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि पार्टनर का गला पकड़ के या उसको शूट आउट कर दो और उससे बोलो कि पैसा दे मेरा। नहीं, यू कैन नॉट डिमांड मनी। व्हाई? बिकॉज एज पर एलएलपी एक्ट इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसका और मेरा रिलेशन है ही नहीं, हम लोग अलग है और वो अलग है। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म होती है या कोई सोल प्रोप्राइटर होता है तो उसमें ऐसा नहीं है। सोल प्रोप्राइटर मीन्स फॉर एग्जाम्पल तारक मेहता का जेठालाल, उसका ही बिजनेस है, उसका ही मुनाफा, उसका ही नुकसान, जो भी होगा लोग उसका गला पकड़ सकते हैं, उसका घर भी बिकवा सकते हैं, जो करना है वो लोग कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपके पास ये सब ऑप्शन नहीं है, आप वैसा कुछ नहीं कर सकते। ओके सर, समझे? सो आर्टिफिशियल लीगल सर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट एक बार समझाओ ना। हाँ, एक सेकंड। सो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इज it is created by law, it is not a natural birth process. Whereas separate legal entity is like it is having a separate identification. The partners and the LLP are two different types of people and they cannot be considered as one and the same. अभी हम लोग कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट पे आते हैं। सो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि समझो कोई एलएलपी है जिसको दूसरी एलएलपी के साथ बिजनेस करना है और उस एलएलपी का टेक ओवर करना है। टेक ओवर मतलब क्या? उसको खरीदना है। या कोई एलएलपी है जिसको क्या बोलते हैं, समझो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलता हूँ, 2 क्लासेस है, समझो एक सपन पारेख क्लासेस है और एक समझो संजय क्लासेस है, ठीक है। सपन पारेख क्लासेस में 2 पार्टनर्स चला रहे और संजय क्लासेस में भी 2 पार्टनर्स चला रहे, ठीक है। समझो संजय क्लासेस को पता चलता है कि सपन पारेख क्लासेस के पास ज्यादा स्टूडेंट्स है एंड इट इज बेटर कि हम लोग उनके साथ बिजनेस करें।
तो हम लोग क्या करेंगे, संजय क्लासेस जाएगा सपन पारेख क्लासेस के पास और बोलेगा कि हमें आपके साथ बिजनेस करना है। तो सपन पारेख क्लासेस बोलेंगे कि आपको हमारे साथ बिजनेस करना है तो आपको आपकी एलएलपी को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। हम आपकी एलएलपी को खरीद लेंगे और आप हमारे साथ बिजनेस करो, मतलब हमारे अंडर आ जाओ। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में मतलब क्या, एक स्कीम है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मर्जर और प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन वेर सपन पारेख क्लासेस हैज एक्वायर्ड संजय क्लासेस नाउ। समझे आप? हाँ सर। ओके, सो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं आज हम लोग ने जो भी सीखा है। सो फर्स्ट एलएलपी एक्ट। फर्स्ट एलएलपी क्या है? एलएलपी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसकी जरूरत क्यों लगी? क्योंकि लोगों को लगा कि प्रोप्राइटरशिप नहीं करना है मुझे उस फॉर्म ऑफ बिजनेस में, मुझे कंपनी का बिजनेस फॉर्म भी नहीं जाना है, मुझे इंडियन पार्टनरशिप फॉर्म के हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं करना है, तो मेरे पास और कौन सा ऑप्शन है? तो मैंने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हम आपके लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किसमें कवर होती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट किसके अंडर है? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो एप्लीकेबल है ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड थिंग हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए आपको 2 पार्टनर चाहिए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। डिफरेंस बिटवीन पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है? पार्टनर जो है वो पैसा भी लाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो बिजनेस को मैनेज भी करेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड पार्टनर कैन बी वन ऑफ द सेम और कैन बी डिफरेंट एज वेल। जरूरी नहीं है कि दोनों सेम होने चाहिए। पार्टनर जो है इट हैज टू बी अ नेचुरल पर्सन और एन आर्टिफिशियल पर्सन। दैट इज, जैसा मैंने एग्जांपल आपको दिया था, कंपनी ए एंड कंपनी बी मिलके क्या कर रहे, एलएलपी फॉर्म कर रहे एज अ पार्टनर। बट कंपनी ए एंड कंपनी बी कैन नॉट बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसका मीनिंग ये है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए सिर्फ नेचुरल पर्सन हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकते। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने भी हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, लेकिन उनमें से एक ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में रुका था लास्ट 182 डेज। उसके बाद हम लोग आए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ एलएलपी, जिसमें बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनर्स में कम एंड पार्टनर्स में गो, एलएलपी विल स्टे एज इट इज। सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अलग है और बिजनेस की लायबिलिटी अलग है। म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर्स को म्यूचुअल कंसेंट एंड म्यूचुअल डिसीजंस लेके बिजनेस ग्रो करना चाहिए। एलएलपी एग्रीमेंट, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, आपके नेम ऑफ एलएलपी का, आपका बिजनेस क्या है, आप बिजनेस कहाँ कहाँ करते हो, वो सब डिटेल्स आपके एलएलपी एग्रीमेंट में जाते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मीनिंग है इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट विल बी डिसॉल्व्ड बाय लॉ। कॉमन सील मतलब सिग्नेचर, मोहर बोलते, जैसे मूवीज में दिखाते कि मोहर लगा के भेजा था मैंने आपको, वो। लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स क्या? अगर मेरे बिजनेस में, मतलब समझो मैं और केयू जो बिजनेस कर रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, तो अगर हमारे बिजनेस में 50 लाख का लॉस हुआ है तो हम लोग उतना ही लॉस बेयर करेंगे जितना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पास पैसा है। ऊपर का जो भी होगा वो हमारे पर्सनल पॉकेट में से नहीं जाएगा, वो हमारी पर्सनल लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। जबकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर को पूरा पैसा देना पड़ता है टू द एक्सटेंट दे कैन। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को बिजनेस मैनेज करना पड़ता है, हमें नहीं, पार्टनर्स को नहीं। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, मिनिमम 2, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, क्यों? क्योंकि एलएलपी जो बनी है वो सिर्फ प्रॉफिट करने के बिजनेस से बनती है, कोई चैरिटी या एनजीओ का बिजनेस के लिए एलएलपी नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन, एक सेकेंड कोई चैट है। कॉमन सील अगेन, ओके, कॉमन सील। सो कॉमन सील क्या है? आपकी सिग्नेचर है, ऑफिशियल सिग्नेचर। जैसा आप लोग ने देखा होगा आपके सोसाइटी में एक राउंड स्टैम्प होता है, वो राउंड स्टैम्प लगा मतलब आपने कंफर्म किया। आप कोई जेरोक्स वाले के इधर जाते हो, कोई मेडिकल शॉप में जाते हो तो वो बिल बनाता है, बिल के ऊपर राउंड स्टैम्प देता है, तो वो उसकी सिग्नेचर है। वैसे ही कॉमन सेल इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ एलएलपी। एलएलपी में कंपलसरी नहीं है कि आपकी कॉमन सेल होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके एलएलपी ने डिसाइड किया है कि हमारी कॉमन सील होगी, तो जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, इनवॉइस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या बिजनेस डिसीजंस है, वो सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कॉमन सील लगाना कंपलसरी रहता है। ओके ओके सर। या उसके बाद हम लोग बिजनेस ऑफ प्रॉफिट ओनली पे थे। इन्वेस्टिगेशन, जैसा मैंने आपको बोला, इन्वेस्टिगेशन मींस अगर
कि कोई भी कंप्लेन करेगा कि आप इलीगल बिजनेस कैरी कर रहे हो, तो वो एलएलपी के नाम पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, ना कि पार्टनर्स के नाम पे। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स एंड एलएलपी आर टू डिफरेंट पीपल, दैट इज बाय सेपरेट लीगल एंटिटी। तो एक कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, अगर कोई भी पार्टनर एलएलपी को लगता है कि मुझे वो दूसरी एलएलपी को खरीद लेना चाहिए, मुझे उसका टेक ओवर कर देना चाहिए, मुझे उसका एक्विजिशन कर देना चाहिए, तो वो भी वो कर सकते हैं। कन्वर्शन इनटू एलएलपी मतलब क्या? मैं ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस चला रहा हूँ अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और अभी मुझे डिसीजन लिया है मैंने कि मैं अभी उसको कन्वर्ट कर दूंगा इनटू एलएलपी, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डिसीजन है कि अभी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कन्वर्ट कर दो इनटू एलएलपी, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद है ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसा मैंने आपको कहा, पूरा एलएलपी का प्रोसेस इनकॉर्पोरेशन से लेके उसका वाइंडिंग अप, उसके बीच में समझो कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, एडमिशन मतलब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन होता है, या कोई पार्टनर रिजाइन होता है, या कोई पार्टनर का कंट्रीब्यूशन आता है, ये सब कुछ एक फाइलिंग करनी पड़ती है। ऑनलाइन फाइल फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म को फाइल करना कंपलसरी है। और फॉरेन एलएलपी, जैसा मैंने कहा कि कोई भी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में एलएलपी है, वो अगर इंडिया में बिजनेस करेगी तो उसे फॉरेन एलएलपी माना जाएगा। एम आई क्लियर टिल हियर? किसी को भी कुछ डाउट्स है? नो सर। सॉरी, कुछ किसी ने कुछ पूछा शायद से। नो सर। अर्षित सर, आपका डाउट क्लियर हुआ? आपने क्रेडिटर्स का पूछा था, इज अनेबल टू पे वाला। यस सर। विराज, आपका डाउट क्लियर हुआ कॉमन सील का? यस सर। कि कॉमन सील क्या है? सिग्नेचर। जैसा आप कॉलेज में जब फीस पे करते हो, तो आपको कॉलेज एक राउंड स्टैम्प लगा के देती है, पता है? आपके कॉलेज का नाम होता है उसमें, तो वो क्या है? इट इज एन एक्नॉलेजमेंट कि ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, ये कॉलेज का डॉक्यूमेंट है। सो इट इज द सेम थिंग, कॉमन सील। Anyone else having any doubt, please do let me know now. Hello students, anyone having doubts? No sir. नो सर। So till now everything is clear with regard to what is LLP, why was it needed, क्यों उसकी जरूरत थी। ऐसा नहीं था कि इंडिया में कोई टाइप ऑफ बिजनेस नहीं था, प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, कंपनी भी चल रहा था, इतने साल से सब तो बिजनेस थे हमारे पास, फिर भी हमारे इंडिया में LLP क्यों लाया गया? क्योंकि उसके भी कुछ अलग से बेनिफिट्स है। जैसा अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म करने जाओगे तो आपको लिमिटेड लायबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी मिलेगी। तो अभी समझो मुझे और मेरे फ्रेंड को कंपनी नहीं खोलनी है, क्योंकि कंपनी खोलने में प्रोसेस लंबा होता है, उसके कंप्लायंसेस ज्यादा होते, उसके लॉज एंड रेगुलेशन ज्यादा होते। तो मैं और मेरा फ्रेंड करना चाहते थे पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस, लेकिन हम इतने साल तक कर क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में लायबिलिटी क्या नहीं होती है? लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। तो वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ में आया कि ये सब रिस्क है और वो रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। काफी लोग ये रिस्क के कारण बिजनेस नहीं सेटअप कर रहे, सो लेट अस हैव वन मोर सेपरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो वो लोग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स? सर हाँ, तो फिर सर सब लोग एलएलपी करेंगे ना, क्यों इतना रिस्क लेके पार्टनरशिप? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। देखो अभी अगर आप कंपनी में हो, ठीक है, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो या अगर समझो आप एक लिस्टेड कंपनी बनाते हो, तो आपके पास पैसा आने का सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर बिजनेस बढ़ जाता है। देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपको बैंक को कन्विंस करना या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कन्विंस करना कि हमें लोन चाहिए बिकम्स वेरी टफ। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टनर्स रहते हैं। वो LLP is considered as very small level of business organization, not like big level of business organization. Whereas where you see the companies are always consider, अच्छा कंपनी में काम करते हो, अच्छा कंपनी का आप बिजनेस करते हो, तो it is considered as a more superior level of organization. So that is the mentality of the people in India. And secondly, limited liability का concept मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग सब अभी कॉलेज में होंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, कोई 12th में होगा, कोई FY BCom या SY BCom में होगा। आप लोग ने कभी भी LLP नहीं सुना। क्यों? क्योंकि इतना कोई उसको
एडवांटेजेस नहीं दे सकता या कोई उसको उतना एक्सप्लोर नहीं करता है, रादर पीपल गो फॉर द कंपनी। क्यों? कंपनी में भी ये जितने फीचर्स आप देख रहे हो ये स्लाइड पे, बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस पे, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ई फाइलिंग, ये सारे के सारे फीचर्स सेम है कंपनी लॉ के अंदर, सेम है। फिर भी लोग कंपनी एस्टैब्लिश करते पहले, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इतने लोग एस्टैब्लिश नहीं करते। द नंबर्स ऑफ LLP इनकॉर्पोरेशन इन लास्ट 2 to 3 years ही काफी बढ़ गए इंडिया में, वरना इसके पहले सब लोग कंपनी का ही इनकॉर्पोरेशन कराते थे। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले LLP के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इतना इजी नहीं था, अलाउड नहीं था, फॉरेनर्स को एंट्री अलाउड। फिर लास्ट 3 to 4 years ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें भी एंट्री देना स्टार्ट किया। So these are the few of the benefits that recently have started coming in the LLP, and people have started the business in LLP form of, but still LLP में कितने लोगों को लाओगे आप? आपके पास कितना पैसा आप इकट्ठा करोगे? आप रिलायंस इंडस्ट्रीज तक तो नहीं पहुंच पाओगे ना LLP में। आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर लो, आपको लोगों से पैसा लेना है, अगर पब्लिक से, तो आपको कंपनी तो बनानी पड़ेगी ना। हेलो। यस सर। या सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि LLP नहीं सर, करना। पर अगर अभी कोई बिगिनर है या कोई मतलब स्टार्ट करेगा तो मतलब स्टार्ट वो करने ये के लिए प्रेफर हिसाब से करेगा बेस्ट है, बेस्ट, दिस इज द बेस्ट ऑफ बेस्ट। यस सर। आप कोई भी कंसल्टेंट को पूछोगे, कोई भी छोटे से छोटे फर्म को या कोई भी बिग कंसल्टेंट्स को, आपको सब लोग बोलेंगे आप LLP स्टार्ट करो। कोई भी नहीं बोलेगा कंपनी स्टार्ट करो, भूल के भी नहीं। आज के तारीख में कोई आपको नहीं बोलेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर इतने सारे कंप्लायंसेस है, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं कि अगर आप वो सब फॉलो करते रहते हैं तो आपका बिजनेस पे फोकस ही नहीं रहेगा। ओके सर, थैंक यू। यस, इसलिए आप देखोगे जो भी कंपनीज होती है उनमें सब सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट्स का नीड क्यों है? ऐसा डिपार्टमेंट्स क्यों बना है? क्योंकि दे नो अगर मैन पावर नहीं रहेगा तो काम डिवाइड नहीं होगा, काम डिवाइड नहीं होगा तो हु विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस वर्क्स आल्सो साइड बाय पैरेलल। So if you ask me, limited liability partnership as a beginner is the best process to start. आपकी liability limited है, आपको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ ₹1 देना है, ₹1 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कंपनी लॉ में ऐसा नहीं था पहले, अभी कंपनी लॉ में स्टार्ट हुआ है ये। कंपनीज एक्ट में अगर आपको कंपनी पहले बनानी होती थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ₹1,00,000 मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन होता था। LLP में ऐसा कोई मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट नहीं है, आप ₹1 भी दो, आप LLP बना सकते हो। ₹1 होना चाहिए, वन रुपी। सर, LLP के कोई एग्जांपल्स दो ना। BDO इंडिया LLP एक है, BDO इंडिया LLP, इट इज एन अकाउंटिंग कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। BDO इंडिया LLP, PwC इंडिया भी LLP में है, और उसके बाद श्रीधर एंड एसोसिएट्स एक है, श्रीधर एंड एसोसिएट्स LLP। फिर AZB एंड पार्टनर्स LLP, AZB एंड पार्टनर्स LLP इंडिया के टॉप लॉ फॉर्म्स में आता है, नाम उनका, वो LLP है। सो ये सारे है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिलेंगे ये नाम। BDO इंडिया LLP आप डालेंगे तो दादर में है, अकाउंटिंग का ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंट्स एंड कंसल्टिंग। फिर PKF एंड श्रीधर भी है, PKF एंड श्रीधर, इट इज अ वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर, मतलब वैल्यूएशन करते हैं ना जो कंपनीज की, वो लोग का बिजनेस वो है, तो वो भी एक LLP है। हेलो 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 hello, anyone else having any other doubts? All clear till now? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. So मेरा Yes, sir. एक रेगुलरली एक प्रैक्टिस रहता है कि जो भी मैंने आज पढ़ाया आपको यहाँ तक, ये स्लाइड तक, ये सेम जितना पैटर्न अभी तक आज मैंने फॉलो किया है, ये सेम आपके CA का जो आपका मॉड्यूल होएगा आपके पास फाउंडेशन कोर्स का, उसमें भी यही सेम पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो वही पेज नंबर तक।
जहां तक मैंने ये कंप्लीट किया, क्योंकि मैंने सेम रखा था द फ्लो ऑफ आपका चैप्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है टिल हियर. सो आप एक बार गो थ्रू कर लेना. वी हैव टुमारो अगेन द सेम लेक्चर ऑन द सेम टॉपिक, तो आप उसमें गो थ्रू करना. उसमें आपको कुछ न्यू पॉइंट मिलती है या कुछ पॉइंट फॉर डिस्कशन मिलता है, तो वी कैन डिस्कस दैट, वी कैन क्लैरिफाई द डाउट्स. एंड कभी भी डाउट पूछने में कुछ सोचना मत, क्योंकि देखो ये लॉ का सब्जेक्ट है, इसमें डाउट्स होने ही हैं, सबको डाउट्स आएंगे. और जितना आप इसमें डाउट्स पूछोगे उतना आपको समझेगा. आप अगर ज्यादा डाउट्स नहीं पूछोगे तो आपको ज्यादा नहीं समझेगा, फ्रैंकली स्पीकिंग. क्योंकि ये कोई अकाउंट्स नहीं है कि डेबिट एंट्री और क्रेडिट हो गई, मैच हो गया, मेरा काम हो गया. नहीं, ये एक प्योर कंसेप्ट बेस्ड है. कंसेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे तो आगे कुछ नहीं होगा. क्योंकि आपका पेपर कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल पेपर नहीं है. 60% आपका पेपर प्रैक्टिकल है, दैट इज केस लॉ पूछते हैं वो लोग, एंड 40% थोड़े बहुत थियोरी क्वेश्चंस पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो योर टारगेट हैज टू बी दैट आपको कंसेप्ट समझ में आए, क्योंकि अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे तो आप आंसर पेपर में लिख नहीं. इसलिए आपके जो भी डाउट्स है आप एक बार गो थ्रू कर लेना वापस. आपका कल हमारा फिर से लेक्चर है 7 PM को. एंड सेकेंड रिक्वेस्ट मेरा ये था कि आप लोग के पास ये पीपीटी रिसीव हुआ क्या आप लोग को ग्रुप में? जस्ट आई वांटेड टू नो बिकॉज आई एम नॉट देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप. नो सर. नो सर. Okay, ठीक है. Once I am completed with this chapter entirely, I will share the PPT also, so that you can also glance through whenever you want. Third thing, मैं ये चाहूंगा कि अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा सिर्फ स्टार्ट हुआ है चैप्टर. बट वंस आई कंप्लीट दिस चैप्टर आई हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग होमवर्क ऑल्सो, सो वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा आपसे. एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो, एनीथिंग रिलेटिंग टू योर सब्जेक्ट, और लाइक सर क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, जो बेसिकली हमेशा हर एक स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सर पेपर कैसे आता है वो बताओ, या सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं सर पहले वो बताओ. ऐसा कुछ भी आपके है क्वेश्चंस तो आप मुझे पूछ सकते हैं. एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? सर पेपर पैटर्न एक बार शॉर्ट में समझाइए ना. सो पेपर पैटर्न में देखिए 60% आपका पेपर जो रहता है प्योरली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल अभी इंडियन से LLP एक्ट के अंदर से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में आता है. जैसा आप कॉलेज लेवल पे लिखते हो तो क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ LLP, या व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ LLP. लेकिन जो दूसरे चैप्टर्स है लाइक कंपनी लॉ है या सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसके अंदर केस लॉ आते हैं. केस लॉ आते हैं जैसे मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी विदाउट कंसिडरेशन, इज दिस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो आपको लिखना पड़ता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या गाइडलाइंस है, एंड उसके बाद आपको आपका आंसर लिखना पड़ता है. सो दिस इज हाउ द पेपर पैटर्न इज ग्रॉसली फॉर योर एग्जामिनेशंस. इट इज नॉट MCQ बेस्ड, इट इज नॉट लाइक के मैच द कॉलम या फिल इन द ब्लैंक्स कुछ आने वाला है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं आने वाला है कि 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया तो 20 मार्क तो गारंटी है, ऐसा नहीं है. केस लॉ है एंड शॉर्ट नोट्स आएंगे, आंसर इन ब्रीफ आएंगे, वो आपको आंसर देंगे. एनीथिंग एल्स? और आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा CA फाउंडेशन में लॉ सबसे टफ है, और लॉ सबसे टफ है, ऐसा कुछ नहीं है. आप जितने इंटरेस्ट से पढ़ पाओगे उतना इजी आपको पड़ेगा. आप अगर इंटरेस्ट नहीं लोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा. एंड आपको इंटरेस्ट अब आएगा जब आप लोगों के डाउट्स सुनोगे और लोगों के डाउट्स के ऊपर आप सोचोगे. अगर आप लोगों के डाउट्स भी नहीं सुनोगे और लोगों के डाउट्स सोचोगे भी नहीं, उसने ऐसा क्यों पूछा, तो आपको ये लॉ नहीं समझेगा. लॉ में आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि ये क्या है और क्यों है, ऐसा क्यों है. जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि तो मैं करूँ ही क्यों इंडियन पार्टनरशिप का बिजनेस, वेरी वैलिड पॉइंट. उसको कोई भी नहीं करना चाहेगा इंडियन पार्टनरशिप बिजनेस, बट देन इंडियन पार्टनरशिप बिजनेस मैं तुरंत स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेलिटी इतना बड़ा नहीं है. जबकि LLP में मुझे एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसी प्रोसेस के थ्रू मुझे अपना रजिस्ट्रेशन करना है. वो गाइडलाइंस के हिसाब से जब तक मेरा रजिस्ट्रेशन आए और समझो मुझे वो बिजनेस नहीं करने का मन हो गया तो फिर who knows. या समझो कोई समर बिजनेस, पता है आपको, एक सीजनल बिजनेस लोग करते हैं. वो सीजनल बिजनेस में क्या क्या होता है, वो सीजन जब आता है तभी के तभी वो लोग वो बिजनेस करते हैं. तो LLP में वो नहीं हो पाएगा ना. LLP में यू कैन नॉट डू अ सीजनल बिजनेस, क्योंकि जब तक सीजन स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ, तब तक तो सीजन खत्म हुआ, बिजनेस चालू होते ही बंद हो गया. लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में तो कर सकते हो ना. आज ये बिजनेस किया, कल दूसरा बिजनेस करूंगा, बाद में दूसरा, हर बार नया नया बिजनेस एक्सप्लोर करते रहेंगे. Listen,
Anything else, students? Anyone having any more doubts or any questions to me? No, sir. Okay. Please note down my number. I'm typing on the chat. Anyone having any doubt, you can contact me on this number on WhatsApp. I'm giving one more number. This is not on my WhatsApp, but you can reach out at this number as well. But WhatsApp पे नहीं है ये number, दूसरा वाला. So you guys please note down. And if you have any doubts, you let me know. Also, I would request any one member to create a group for law students so that I can share all the updates over there and take updates from you guys also from there. So कोई भी एक student, anyone from the group can make the group for all the students who are there in this group so that I can share the information on regular basis with everyone. So please do create one group. Hello. Okay, sir. Yeah. And last May, I just wanted to know, there are around 18 students. So majority of them are in like BCom, first graduation or junior college, 12th completed, just for my knowledge. So, you know, because I just want to know so that, Completed. Well completed. Okay, majority. 12th complete. Okay. So that according to that level only, I should use my terms and language, nothing else. That was the only reason to ask you this question. Okay, students. So that's all for today. If you have any doubts or anything, you let me know now, or we can wind up for today's lecture. No, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, students. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Thank you.